everyone, welcome back to my channel. I hope you had a great year and a great New Year's. ये वीडियो मेरी इस साल की फर्स्ट इंटरैक्टिव वीडियो होने वाली है, so stay tuned and watch till the end. So in this video we are going to talk about, first of all, about the JEE Mains session 1. How was the paper and what are the possibilities of the percentile, or you can say the cutoff for this year for different colleges, and what will be beneficial for you all. Let's continue with today's session, today's video, and it's going to be all about you, your questions, your queries, and whatever you have questioned me till now. I have replied to all of you, all those who have asked me questions through my LinkedIn, through Instagram and YouTube videos also, but most of them I have also not replied because तब मेरे पास आंसर नहीं था प्रॉपर आपके क्वेश्चंस का, और जिनको मैंने आंसर कर भी दिया उनके क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत अच्छे थे, इसलिए आज मैं उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे लूँगी. आई मीन टू से कि मैं उनके क्वेश्चन यहाँ रिपीट करूँगी और उनके आंसर बताऊँगी, सो दैट उससे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, राइट. सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट JEE Mains 2025. Okay, so 2025 is there. JEE session 1 is done and dusted. The results भी आ गए हैं. To all those who got what they wanted, many congratulations, and who are still not up to what they were expecting, don't worry, session 2 is still left. You can do it better and don't take pressure. So many of you must be wondering also that why I'm making this video so late. That is because many of you also know that I'm working in PwC, and yeah, it's a campus placement. You must be knowing my whole story, and if you don't know about my whole story, then just go back to my channel and watch my video where I have revealed that which company I am in, how I got the placement, what was the placement procedure and everything. So because I'm a fresher, I have to learn many things. So उसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं बच रहा है कि मैं सबके लिए वीडियो बना सकूं. बट या मोस्टली व्हाट आई डू इज कि जब भी किसी का मैं मैसेज देखती हूँ, यूट्यूब पे कमेंट देखती हूँ, या लिंक्डइन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं एंड दे डू आस्क मी क्वेश्चन, आई रिप्लाई देम. आई रिप्लाई ऑल द पीपल हु आस्क मी क्वेश्चंस थ्रू लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और इवन ऑन यूट्यूब. ओके, अब इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूँ एवरी प्रोसेस. फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अभी आज की इस वीडियो में. So this is just a warm-up video. So I'm going to reply all of your comments, and these comments are answers for most of people's questions. Like these comments have questions which will clear many of yours mind, because ये questions अच्छे हैं, nice. Okay, questions I mean comments. First is, how many years of professional experience did it take you and your friends to start earning 1 lakh per month? Who said that we earn 1 lakh per month? This is big lie. I'm not earning 1 lakh a month. Sorry. I wish. I'm just praying. I'm just hoping. I'm hoping that I start earning 1 lakh per month quickly. Yeah, and so do you also. I want all of you also to start earning the amount you all wish to earn. But for now, this news is fake. I'm not earning 1 lakh per month. Sorry, but I wish to. Moving to the next. So, was the hotel was sponsored by PwC for 7 days? Was the travel fare covered too, like onboarding process and benefits? Can you please share? Hotel was sponsored by PwC for 7 days. Yes, it was sponsored. नहीं, ये हर कंपनी ऑलमोस्ट अच्छी जो बिग रेप्यूटेड कंपनी होती है वो आपको रीलोकेशन से पहले आपको 1 week ऑफ अकोमोडेशन देती है completely on their behalf. Okay, these are the benefits which we get being in a good company, when we get placed in a good company. ठीक है, for 7 days hotel was free for me because it was sponsored by of course company. ठीक है. Secondly, was the travel fare covered too? No. होटल से आपको कंपनी मतलब ऑफिस जाना है वो कवर्ड नहीं है, वो हमें खुद के पैसे लगाने हैं. मतलब सब कुछ तो नहीं दे सकते बिकॉज होटल वो ऑलरेडी ऑफिस से पास में ही प्रोवाइड करते हैं, जो ऑफिस के पास है. ठीक है. एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एंड बेनिफिट्स, कैन यू प्लीज शेयर? बेनिफिट्स ऐसे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स वही जो हर कंपनी में होते हैं, सिर्फ PwC के नहीं, हर कंपनी में होते हैं कि वो आपकी चॉइस होती है कि आप हेल्थ के लिए अलग रखेंगे. दिस वीडियो इज गोइंग इनटू अनदर डायरेक्शन. नो. अब हम इससे ज़्यादा नहीं इस पर बात करते हैं बिकॉज इट्स अबाउट स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज अबाउट JEE Mains स्टूडेंट्स. फिर भी मैं कमेंट्स जो भी आएंगे मैं ले लूँगी, बट इलेबोरेट नहीं करूँगी. इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा तो. Okay, got 92.2 percentile, Delhi quota general. Can I get something in the college? Nice percentile.
you will definitely get a seat in IGDTW. 100% you will get it, but which branch, that depends on the rank. ठीक है, I hope you get a good rank. After you will get your rank, please do comment again and we will discuss about who can get which seat in which branch. Okay, next question is, hi Di, outside Delhi कट ऑफ स्पॉट राउंड तक कितना जाता है? सो स्पॉट राउंड में कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपके पास सीट बची कि नहीं, बट IGDTU की सीट्स मोस्टली नहीं बचती हैं, अगर बच भी जाए एक दो तो वो डिपेंड करता है आपका लास्ट कट ऑफ, जो लास्ट राउंड होता है 5th राउंड, उसका कट ऑफ कितना गया है। उसके बाद अगर सीट बच जाती है, इफ पीपल ड्रॉप, वो आपको मिल सकती है। सो मतलब अभी तक तो एग्जैक्ट स्पॉट राउंड का क्योंकि रैंक नहीं दिखाते हैं, बट या जो भी 5th राउंड में आता है उसके ही अराउंड होता है लास्ट स्पॉट राउंड में भी जो भी जाते हैं। बट रैंक भी जो होती है वो आपको अपने हिसाब से, सॉरी ब्रांच जो होती है आपको कॉलेज के हिसाब से ही लेनी पड़ती है, फिर जो भी अवेलेबल हो। अगर इफ यू वांट टू बी इन दैट कॉलेज, आपको कोई भी ब्रांच से चलाना पड़ेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बीटेक, देन आई थिंक आपको कोई भी ब्रांच ले लेनी चाहिए, जो भी मिल जाए। IGDTU में आपकी खुद की चॉइस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रैंक लानी पड़ेगी, बिकॉज ईयर बाय ईयर IGDTU इज गेटिंग बेटर। लाइक मोस्टली हम जिस वजह से अच्छा कॉलेज प्रेफर करते हैं वो सारी क्वालिटीज IGDTU में है। एंड बीइंग अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू, बीइंग इन दिल्ली, बाकी कॉलेजेस से बेटर प्लेसमेंट है IGDTU का। ठीक है, गुड वेल नोन कंपनीज कम टू IGDTU एंड दे डू गेट प्लेस्ड ऑल द स्टूडेंट्स। एंड दिल्ली कोटा है आपके पास, और या आपके पास रिजर्वेशन है तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। एंड या तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंक इज 2 लाख EWS Delhi candidate, कैन शी गेट CSE? 2 लाख EWS Delhi candidate नहीं मिलेगा। अब EWS की कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी में फिल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास देख रही हूँ मैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती जा रही है, लाइक कम होती जा रही है। कट ऑफ कम होगी उतनी वैल्यू ज़्यादा है, राइट? तो या 2 लाख इज टू मच फॉर EWC Delhi कैंडिडेट, बट लेट्स सी कि आपका डिपेंड्स। पता है, मैं सब बता रही हूँ, एवरी ईयर थिंग्स डू गेट चेंज, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड के बाद यू गेट नो थोड़ा कि अच्छा में क्या सब्जेक्ट मिल सकता है आपको, कौन सा कोर ब्रांच आपको मिल सकती है, कितने रैंक पे। Please tell me, will IGDTU accept JEE Mains paper 2 marks for getting admission into BR course? If yes, then please tell what was the first year cutoff, because I couldn't find it. Okay, so I will get some knowledge on this topic and then I'll make a video on this. अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि BR के लिए क्या ज़रूरी है IGDTU में, because I am a BTech student, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कभी कि और किसी ब्रांच के बारे में पता करने के लिए। हाँ, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी तो मैं ऑफ कोर्स सब पता करके ही बताऊंगी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड आफ्टर सर्चिंग अ लॉट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सही आंसर दूंगी मैं। नेक्स्ट, दी आपने JEE मेंस के लिए कोचिंग ली, कहाँ से ली? मैंने कोचिंग ली ही नहीं। ओके, सो आई हैवंट टेकन एनी कोचिंग एनीथिंग थ्रू आउट माय स्टूडेंट लाइफ। अभी तक तो कोई कोचिंग नहीं लिए कुछ भी करने के लिए। हाँ, ट्यूशंस जाती थी मैं, ट्यूशंस ऐसे ही, मतलब जो हम क्लास में पढ़ते हैं उस वही वाला ट्यूशंस, नॉट कोचिंग नहीं गई हूँ आज तक मैं। और मैंने ड्रॉप भी लिया था, जैसे कि मैंने उस वीडियो में अपने बताया है, मैंने ड्रॉप लिया था, बट दैट इज नॉट फॉर कोचिंग, फॉर टेकिंग एनी क्लास। वो ड्रॉप मैंने लिया नहीं था एक्चुअली, मैं आज दूसरे कॉलेज में थी, प्राइवेट कॉलेज में, बट बिकॉज मुझे अपना ईयर वेस्ट नहीं करना था। आई डिडंट वांटेड टू जस्ट स्किप एन ईयर और डू कोचिंग, बिकॉज मुझे पता है मैं कोचिंग नहीं कर पाती। कोचिंग का जो पैटर्न है पढ़ने का वो मैं फॉलो नहीं कर पाती। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। आई मोस्टली बिलीव इन सेल्फ स्टडिंग, एंड हाउ मच यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ इज इनफ फॉर गिविंग JEE मेंस एग्जाम। बाय नाउ आई नो दिस, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोचिंग वगैरह सब की, बट एट द एंड प्राइवेट कॉलेज में है। This is the reason I didn't do any coaching, I didn't take any coaching. मैंने self study की है, that's it. Next, what if you do not have your 12th mark sheet certificate during your physical reporting, as hard copy will arrive after 2 to 3 weeks, but have digital mark sheet? Will they allow admission, as मैं बाद में दे दूंगी जब बोर्ड हार्ड कॉपी सेंड करेगी? आपको मार्कशीट मिल ही जाती है एडमिशन तक, क्योंकि एडमिशन इतना लेट होता है। ये सब जो प्रोसीजर्स होते हैं, आपका एडमिशन कब शुरू होता है? अगस्त में, मतलब प्रॉपर आपका कॉलेज कब स्टार्ट होता है? अगस्त 1st या सेकेंड वीक से मोस्टली शुरू होता है आपका कॉलेज।
सो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से मार्कशीट दे सकते हो, आपको आराम से मार्कशीट मिल भी जाएगी आपकी, क्योंकि मार्कशीट आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक तक मिल जाती है, जुलाई फर्स्ट वीक तक मिल जाती है। आपके एडमिशन के बाद ही आपसे आपकी मार्कशीट वगैरह जो है वो पूछते हैं, दैट्स इट। और कुछ इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट ये एक है बारबी नगर करके है एक subscriber. I want to give a shout out to this girl. She has been a consistent subscriber and a consistent supporter of mine. I think from the day I started vlogging, उससे कुछ months बाद से, जब से मैंने कॉलेज वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं, तब से लेके अभी तक बीच में मेरे बहुत गैप्स आए, मैंने ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोस वगैरह नहीं बनाए, बट शी हैज़ बिन अ सपोर्ट टू मी। एक्चुअली एक भी अगर ऐसा कोई होता है ना जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको वीडियो बनानी चाहिए, और तो दिस इज दैट गर्ल, बारबी नगर। अ बिग शाउट आउट टू यू, यू हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी मेकिंग मोर वीडियोस, मोर व्लॉग्स, एंड या थैंक यू। एंड आई होप मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर पा रही हूँ टू एवरी वन ऑफ यू, कुछ हेल्प हो पा रही है आप सबकी। या दैट्स माई ओनली मोटिव, दैट्स इट। वरना इससे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लिटरली मुझे 2 years हो गए हैं यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही इसलिए किया था कि जस्ट टू कीप द मेमोरीज आई विल मेक द वीडियोस, बट देन स्लोली आई रियलाइज्ड कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जब मैं कॉलेज में हूँ उसके बारे में मैं बता सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो उससे मैंने स्टार्ट किया था, एंड नाउ सी वेयर आई एम। मैंने अभी भी मैं किसी मोटिव से नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि दीज some people who love my videos, love the kind of videos I make, जिनको ये information चाहिए, और why not me, जब मैंने सब कुछ experience किया है and I know everything, every in and out, and I can provide more information, I can get insiders। तो वो उस सब से, इससे मुझे याद आया फेस्ट है, फेस्ट IGDT का फेस्ट है, तरंगना है, and I want to come। I hope मैं आ पाती हूँ कि नहीं, let's see। Moving to the next comment, my teacher asked me to make a conference paper. So my question is that कि group में करना ठीक होगा या अकेले? तो थर्ड ईयर में आती है आपको, थर्ड ईयर भी नहीं है, हाँ सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर ओवर होने के बाद आपको ये सारी बातें पता चलने लगती हैं थ्रू योर सराउंडिंग कि अच्छा आपको एक पेपर बनाना स्टार्ट करना है एंड ऑल दैट। रिसर्च पेपर मोस्टली कॉन्फ्रेंस में वो जो आता है, वो सबमिट होता है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, वो आपको रिसर्च करके फिर प्रोवाइड करना होता है अपने मेंटोर को। आपको एक मेंटोर भी आप अपने चॉइस से कोई भी एक मेंटोर पिक कर सकते हो और उनकी हेल्प से एक रिसर्च पेपर बना सकते हो। उसके बाद वो पेपर एक कॉन्फ्रेंस में सबमिट होगी, और वो कॉन्फ्रेंस कौन सी होगी वो भी आपको आपकी मेंटोर गाइड करेगी कि कहाँ आपको वो पब्लिश करवानी है। पब्लिश होने से पहले भी वो उसका पूरा प्रेजेंटेशन होता है। वो जो पब्लिशर जहाँ आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन भरा है, उसका भी एक अमाउंट होता है, उसका भी एक अमाउंट लाइक डिपेंड्स ऑन पब्लिशर टू पब्लिशर। बहुत अच्छा पब्लिशर है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। जैसे मैंने जहाँ पब्लिश करवाया था, हमें 11,000 रुपीज़ सबमिट करने थे, हमने किए। ये भी है कि हमें रिइंबर्समेंट नहीं हुआ हमारा कॉलेज के थ्रू, ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब आई डोंट नो, हमने तो रिइंबर्समेंट फॉर्म भी भरा था, हमने कुछ गलत भरा है कुछ, बट हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हुआ और कोई पैसे नहीं मिले। हाँ सॉरी, क्वेश्चन में भूल गई, ग्रुप में करना चाहिए अकेले? आई फील कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप किस टाइप के पर्सन हो। आर यू कंफर्टेबल इन डूइंग अ ग्रुप? और ग्रुप भी आपको खुद बनाना होता है, आपको सोच समझ के वो ग्रुप बनाना चाहिए। बिकॉज अगर आप तीनों एक चीज पे अलाइन नहीं हुए, अगर 3 लोगों का ग्रुप है, मैक्स 4 का ग्रुप हो सकता है, तो इसीलिए तो मेरा जैसे 3 लोगों का ग्रुप था, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन वॉज गुड, प्रिटी गुड, लाइक कंफर्टेबल भी थे, कोई आर्ग्यूमेंट उतनी कुछ थी नहीं, ठीक है। बट अगर हाँ कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है किसी भी चीज़ को लेके, देन इट गेट्स वेरी हेक्टिक। आपका चलते हो अब इनको झेलना ही पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब आप सोचो मत, तो इसी वजह से आप ग्रुप सोच समझ के बनाओ। अगर आप अकेले पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। और आपको अगर साइड बाय साइड आपको एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, आप लाइक आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो फॉर प्लेसमेंट के लिए, आप एक्स्ट्रा से पढ़ रहे हो, अलग से कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट टाइम कि आप फुल्ली एक प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर सको। आप कर सकते हो ऐसे अकेले, कोई इशू नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एंड डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑल्सो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट उठा रहे हो, लाइक करना चाह रहे हो। सेमीकंडक्टर्स वगैरह से रिलेट करोगे तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम, डिपेंड्स ना पर्सन टू पर्सन। आप एक बार देखोगे, आप टॉपिक क्या चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी मेंटोर आपको गाइड करेगी। आप मेंटोर से क्वेश्चन पूछो अपने, एंड मेंटोर प्लीज सोच समझ के चूज करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक मेंटोर जो वो अच्छी हो, मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कर सको, आपको सोचना ना पड़े कोई क्वेश्चन करने से पहले कि अरे वो क्या बोलेंगे। तो चूज अ बेटर एंड अ वाइजर मेंटोर जो कि आपको गाइड कर सकती हैं।
खुद ही अवेलेबल हो उनका, ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जो फैकल्टी में जो आपको मेंटर मिलते हैं वो अवेलेबल भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपको सब खुद ही करना पड़ता है, तो वो सोच समझ के करना। ओके, I belong to general EWC, EWS, I don't know why मैं C बोल रही हूँ बार बार, EWS Delhi, so according to it, how much should I score so that I can get a good branch? So अभी आप देख लो आपको कितना स्कोर करना चाहिए, मैं आपको रैंक बता दे रही हूँ। तो अगर आप 20K के अराउंड आपकी रैंक आती है, then you will get CSE. CSE is a good branch right now because सबको सॉफ्टवेयर में जाना है, कोडिंग करनी है, तो CSE ब्रांच को ज़्यादा वैसे मिलते भी हैं, थोड़ा ज़्यादा लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड जब आप होते हो ना, आपका बेस सॉफ्टवेयर होता है, CSE पे किया आपने, गुड कॉलेज से CSE करे हो, पीपल थिंक दैट यू हैव ब्रेन्स, बिकॉज हाँ CSE अगर आपको चाहिए तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीपल थिंक सो, और होनी भी चाहिए, एक्चुअली होती है, और बट ऐसा सबके केस में नहीं होता है, कुछ कुछ की रैंक अच्छी होती है फिर भी उनको CSE नहीं लेना है, ECE लेना है या मैकेनिकल लेना है, सो डिपेंड्स की पर्सन की चॉइस क्या है। आप 20K तक आपकी रैंक होनी चाहिए, 20K के लिए आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए, 99 परसेंटाइल, 98, क्योंकि IGDTU का जो रैंक है, IGDTU की जो पूरी कॉलेज की वैल्यू बढ़ रही है एवरी ईयर इट्स ग्रोइंग, सो इट्स अ गुड कॉलेज, यू मस्ट अप्लाई, यू शुड गो टू दिस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, फी भी ज़्यादा नहीं है, लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ज़रा बहुत ज़्यादा IGDTU की तारीफ वगैरह कर रही हूँ, बट नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ दैट आई फील कि इट्स गुड कॉलेज एंड आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है, मिनिमम प्लेसमेंट 6 to 7 LPA मिनिमम। ऑफ कोर्स किसी भी कॉलेज की वैल्यू उनकी प्लेसमेंट रेट से ही बढ़ती है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्डइन ID है, प्लीज आप मुझे फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे वहां पे भी पूछ सकते हो, बाकी आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो सो दैट आई कैन नो कि ऑन व्हाट टॉपिक्स यू वांट माय रिप्लाईज, और आप क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे आपको अच्छे से समझा दूं, इलैबोरेट करूं, सो दैट यू हैव अ बेटर पिक्चर, बेटर क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, दी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज अ सेफ स्कोर फॉर अ EWS कैंडिडेट फॉर दिल्ली सो दैट शी कैन एंटर इन द कॉलेज। सेफ स्कोर के साथ आपको बताना चाहिए था कौन सा ब्रांच भी आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी ब्रांच चलेगा तो मैं बता रही हूँ आपको 1 लाख के अराउंड आपकी रैंक आनी चाहिए। इफ यू आर EWS स्टूडेंट एंड ऑल्सो यू हैव दिल्ली कोटा, देन आपकी रैंक जो है 90K की टू 1 लाख के बीच में अगर आएगी तो आपका कोई भी ब्रांच में आपको हो सकता है, कोई भी मतलब कि MA मिल सकती है आपको, ठीक है, MA मिल सकती है, 5 ईयर कोर्स वाली MA मिल सकती है, ठीक है। तो आराम से ये सोच के करो कि आपको सेफ स्कोर क्यों जाना है, आप अपना बेस्ट करो ना। आपको मिनिमम रैंक 90K लानी है अगर आप EWS स्टूडेंट हो और आपके पास दिल्ली कोटा है और आप MA स्टूडेंट बनना चाहते हो तो, ठीक है, MA के लिए आपको मिनिमम 90K लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको से बेटर ब्रांच चाहिए, बेटर तो वैसे मेरे लिए तो सारे ब्रांच इक्वल हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी MA इज नॉट अ बेस्ट ब्रांच, सो ECE चाहिए तो उससे आपको और मतलब 60K के अराउंड, 40K के अराउंड अगर CSE चाहिए तो आप इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो कि आप कितने अच्छे रैंक आ जाए आपकी, ठीक है। डी आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट one message for joining a national level project under IIT professor, so it's worth it or join or not. Understand कि आप कोई भी प्रोफेसर अगर आपको कुछ बोल रहा है, क्या वो सच है या वो फेक है, पहले तो ये जानो कि ये फेक न्यूज है या रियल है, ठीक है, जाके पता करो कि ये सब सच में हो रहा है कि नहीं। इफ इट्स ट्रू, अगर ये सब सच है देन यू शुड 100% गो फॉर इट। क्यों कोई नहीं चाहेगा भाई, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है तो, बट आप खुद सोचो, आपको खुद पता होना चाहिए कि वो आपको मिल रहा है, क्या ये सही सब कुछ ट्रू है या इट्स अ ट्रैप, और मतलब क्योंकि आजकल भाई कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो यू हैव टू बी अवेयर, जस्ट थिंक अबाउट एवरीथिंग, क्या हो रहा है आपके अराउंड में, क्या ये सच है फेक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो एंड देन ओनली गो फॉर इट। चलो एक और टॉपिक कवर करते हैं एंड दैट इज JEE सेशन 2 आने वाला है। JEE सेशन 1 हो चुका है, इट्स डन, ठीक है, डन एंड डस्टेड, उसके रिजल्ट्स परसेंटाइज सब आ गए हैं, जिसको अच्छे मिल गए हैं वेरी गुड फॉर देम, ठीक है, और जिसको नहीं मिले हैं डोंट वरी, आपके पास एक और चांस है इस साल अच्छे परसेंटाइल लाने का, ओके। सो JEE मेंस सेशन 2 इज गोइंग टू हैपन इन अप्रैल, राइट,
तो आप उसके लिए प्रेप करो। क्या आपको मेन करना है कि आपको ये जानना है, आपको पेपर 1 से आपको क्या पता चला। पहली चीज आपको पता चला कि आपको सारे आंसर नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट क्वेश्चन पे ही आंसर करने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सेकंड, आपको क्या पता चला, आपका पेपर किस टाइप का है वो आपको पता चल गया होगा, किस टाइप का लेवल पता चला होगा, डिफिकल्टी लेवल, ओके। सो फोकस ऑन द थिंग्स जो आपको एग्जाम में लगा था अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट यू नेवर नो आपने इजी क्वेश्चन को भी गलत किया होगा। तो प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस जो आपको लग रहा होगा अरे ये तो इजी है, जब आप देख रहे होगे आपको लग रहा है वाओ दिस इज इजी, इसका आंसर निकल गया। हु नोस कि आपने वो आंसर गलत किया था। आपके आंसर की आपने चेक की नहीं की होगी, अगर नहीं किया तो चेक कर लो, और अगर कर ली है तो आपको पता होगा कि आपको जो इजी लग रहा था वो भी आपने गलत किया है। तो फोकस ऑन टॉपिक वाइज, तो फोकस टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक छोटा है, मतलब कम क्वेश्चंस है बट इट्स गुड, मतलब आप उसमें स्कोर कर सकते हो। छोटे टॉपिक्स को पे ध्यान दो, ठीक है, छोटे टॉपिक्स पे, क्योंकि छोटे टॉपिक्स आपको आ रहे होंगे तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उतना कोई ज्ञान नहीं दूंगी, मेरी कोई बहुत ही अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी, ठीक है, बट इतना आ गया था कि आई गॉट IGT2, गवर्नमेंट कॉलेज है, आई वॉज सैटिस्फाइड या, एंड दैट वॉज ऑल्सो द थिंग इज कि मेरे घर के बहुत पास था, तो ये भी बेनिफिट था मेरे लिए। मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इट्स इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, मैं घर के पास रहूंगी, मुझे कहीं शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, एंड मेरे पैसे बचेंगे राइट। तो प्लीज पढ़ लो अच्छे से, बस लोग कहेंगे कि बस ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थ्रू आउट करना पड़ता है, मेहनत आपको लाइफ टाइम करनी पड़ती है। एक बार हाँ आपको कॉलेज में मजे आएंगे, पर मैं बता दे रही हूँ कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लो, फिर थोड़े दिन आपको, मतलब बीच कॉलेज में क्या आपको कंसिस्टेंटली उतना नहीं करना पड़ता, बट कॉलेज के बाद आपको बहुत करना पड़ता है। कॉलेज भी आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो आपकी ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ जो मुझे करनी पड़ रही है अभी, इट्स डिफिकल्ट, बट ओके व्हाटएवर इट इज, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और भी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग के अलावा जो आपको करने चाहिए, जिसमें आपको अच्छा खासे पैसे मिलेंगे, और साइंस बैकग्राउंड में होके भी अगर आप इवन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग करते हुए आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है कि आप कोडिंग नहीं कर सकते, और या आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिल सकती हैं। ऑल्सो अगर आप कॉलेज में हो और आपको कहीं इंटर्नशिप करनी है, डू लेट मी नो, मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आने वाली हूँ इन माय अपकमिंग वीडियोस। मैं लेकर आऊंगी, क्या लेकर आऊंगी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी कि मेरे पास आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कॉलेज में रह के भी अर्न कर सकते हो, यू कैन गेट सम गुड इंटर्नशिप्स, बट फॉर दैट you have to like, share and subscribe the channel, and also follow me on LinkedIn. Okay, चलो bye.